Hello everyone. So students, in our previous session we were doing lifelines of Indian economy, and over there we have completed the topic of roadways. So today we are going to study about railways. So those are the principal mode of transportation. ठीक है, principal mode of transportation in terms of what? That is in terms of goods as well as in terms of passengers in our country. Means what? कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको in terms of carrying the goods from one place to another and in terms of also carrying the passengers from one place to another. Then these railways, they also make it possible to conduct various activities. Like say for example, railways, those can be used over here for business, for sightseeing, for pilgrimage, along with transportation of goods over the longer distance. Apart from an important means of transportation, the Indian railways which are there, they have been a great integrating force for more than 150 years. That is, railways क्या कर रहे हैं actually? The railways in India, they are binding the economic life of the country, as well as they are accelerating the development of industry and एग्रीकल्चर. इसको सिंपल टर्म्स में इस पॉइंट को ऐसे देख सकते हो कि रेलवेज क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, वाई दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री? Industries, agriculture, these are the main occupations which are carried out in our country. और इन occupations की easy functioning के लिए क्या useful है? Railways, they are playing an essential part in this. Now how they are playing an essential part in this? देखो इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि for carrying goods from one place to another, the railways that can be used. ठीक है, तो अब जब आप रेलवेज यूज़ कर रहे हो फॉर कैरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो क्या है? गुड्स. गुड्स आर एक्चुअली बीइंग मैन्युफैक्चर्ड वेयर? दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री ओनली. और रॉ मटेरियल को यूज़ करके आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो. वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया आपके पास? ऑब्वियसली फ्रॉम agriculture. Agriculture is providing that raw material, so by the means of transportation, that is railways, you are carrying it to the place of production, and with the help of industry that is converted into finished product. और वो finished product कहाँ पे बना? इंडस्ट्री में. again with the help of transportation, those finished products, those are carried to various parts of our country. Now let's talk about India's railway network. In terms of the Indian railway network, if we are talking, so it is having the network of 7,031 stations, which is spread over a route length of 63,221 kilometers, with a fleet of 7817 locomotives. Locomotives किसके लिए यूज़ कर रखा है? देखो यहाँ पे, it is used for engines. पैसेंजर्स की बात करो तो इन टर्म्स ओवर है, दैट इज 5321 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स, 4904 अदर कोचेस व्हीकल्स एंड 228 170 वैगन्स एज ऑन 31st. ठीक है, नाउ आई विल बी शेयरिंग वन मोर स्लाइड विद यू फॉर दिस रेलवे नेटवर्क. You can have a look at this slide now. It is having the more details about that one. ठीक है, now let's talk about the types of gauges which are there. 3 are there. देखो आपकी बुक में जो सिलेबस में दे रखा है, just the names you should be knowing and what is their length in terms of meters, that you should be knowing. So there are 3 types of gauges. Which are those 3 types? ब्रॉड गॉज, मेट्रो गॉज, मेट्रो बोल लो या फिर और क्या बोल सकते हो इसको, मीटर गॉज एंड नैरो गॉज.
Others which are given over here in this slide, na, those are not of your relevance. Once again I will be returning back to the previous slide now. Have a look at this table now. This is related to that same thing, the gauges which are there: broad gauge, meter gauge and narrow gauge. Broad gauge in meters we are going to talk. First of all, अगर in meters बात करें broad gauge की, तो what is its length? That is 1.676 meters. मीटर गॉज या फिर मेट्रो गॉज की बात करें तो उसका क्या है? दैट इज 1 मीटर. एंड नैरो गॉज इट इज लेस देन दैट, लेस देन 1 मीटर, दैट इज 0.762 एंड 0.610. रूट बात करें तो द रूट्स आर ऑल्सो गिवन ओवर देयर. देन रनिंग ट्रैक्स, दोज आर गिवन, एंड द टोटल ट्रैक्स लेंथ दैट इज ऑल्सो गिवन इन द स्लाइड. जस्ट हैव अ लुक एट दीज. एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें इन मीटर्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट. दैट इज ब्रॉड गॉजेस 1.676, मीटर गॉजेस 1 मीटर एंड नैरो गॉज दैट इज 0.762 एंड 0.610. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज. In terms of Indian Railways, if we are talking, so the Indian Railway is now reorganized into 16 zones. The distribution pattern of the railway network in the country, it has been largely influenced over here by the physiographic, economic and administrative factors. ठीक है. तो first of all, let's have a look at these factors now. Physiographic factors. अगर नर्दर्न प्लेन्स की बात करें, स्पेसिफिकली हमारी कंट्री का नर्दर्न प्लेन्स का जो रीजन है, नर्दर्न प्लेन्स में क्या है? दीज आर द वास्ट लेवल लैंड प्लेन्स, दे आर हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, दे आर रिच, हैविंग रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. तो ये जो रीजन है ना इंडिया का, द नर्दर्न प्लेन्स रीजन विच इज़ देयर, इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल वन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक्स. तो यहाँ पे क्या है? द लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स विच आर, नेक्स्ट पार्ट विच इज देयर, दैट इज द लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स. वहाँ पे कैसे होता है? दे आर रिक्वायरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टिकल. अब इन दोनों को देखो, जैसे कंपेयर कर लें. अगर नर्दर्न प्लेन्स का रीजन है, नर्दर्न प्लेन सिंस देयर आर प्लेन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ है, तो इस रीजन में क्या है? ईजी टू कंस्ट्रक्ट है रेलवे नेटवर्क. तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल रीजन हो गया. रिवर्स की बात करो तो रिवर्स के टर्म्स में क्या होता है? रिवर्स के एरियाज़ में अगर आपको रेलवे नेटवर्क डेवलप करना है तो वो कैसे करोगे? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्रिजेस ओवर देयर. तो वहाँ पे क्या होता है? इट इज़ एक्टिंग एज द हर्डल ऑब्स्टिकल इन दैट रीजन. सिमिलरली हिली रीजन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन विच इज़ देयर, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स क्या है? दोज आर लेड ओवर देयर थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स. हिली रीजन्स में, हिली टेरेंस में, वहाँ पे यूजुअली क्या नोटिस किया गया है? वहाँ पे कैसे डेवलप करते हैं रेलवे ट्रैक्स को? दोज आर डेवलप थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स ओवर देयर. देन इन टर्म्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन रीजन, अगर हिमालयन रीजन की बात करोगे तो वहाँ पे क्या है? दे आर ऑल्सो अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? दे आर हैविंग हाई रिलीफ, स्पार्श पॉपुलेशन. स्पार्श पॉपुलेशन से क्या मीनिंग है मेरा? कम पॉपुलेशन है उन रीजन्स में, एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. Likewise, it was difficult to lay the railway lines on the sandy plains of western Rajasthan also. राजस्थान का ही तो पता ही है, डेजर्ट, थार डेजर्ट, वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो. तो सैंडी प्लेन्स ऑफ दैट रीजन, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पे क्या हो जाता है? इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट टू बिल्ड द रेलवे ट्रैक्स. द स्वैम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड. एंड सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेचेस ऑफ सियाद्रीज. उधर क्या होता है? इट कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू द गैप्स और द पासेस. सियाद्रीज क्या है एक्चुअली? इट इज़ द नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स ओनली. तो वेस्टर्न घाट्स रीजन में अगर बात करोगे आप रेलवे ट्रैक की, तो वहाँ पे क्या है? इट इज़ ओवर देयर बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ गैप्स और पासेस.
अब ऐसे ही अगर हम बात करें टूवर्ड्स साउथ, दैट इज इन रिसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे along the western coast, वहाँ पे क्या हुआ है, it has facilitated the movement of passengers as well as goods over there. In has also faced the number of problems over there, such as sinking of the track in some stretches and land over there. तो देखो कौन कौन से रीजन्स का पढ़ा हमने. वी हैव डिस्कस्ड द डिस्ट्रीब्यूशन रेलवे पैटर्न इन टर्म्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट रिवर्स, hilly terrains which are there in the peninsular region, the Himalayan mountains, the desert regions, the sandy plains which are there, then ghats, almost each and every physical feature we have covered. और हर physical feature के अंदर क्या होता है, there is the difference in the development of railway. That's it for today. Tomorrow we are going to continue with the topic of railways. So thank you.